Okay, welcome students. Now let's move on to question number 5. So a container shaped like a right circular cylinder having diameter. There is a container which is in the shape of a cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter. Diameter 12 centimeter and height 15 centimeter. This container is filled with ice cream, and these ice cream are to be filled in this cone-like structure, and the cone-like structures have dimension 12 centimeter and the radius 3 centimeter, and the shape of the cone is like that. There is a cone surmounted by a hemisphere on the top. So we have to find the number of such cones that can be filled by the ice cream of the container. हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर आइसक्रीम भरी हुई है. उस आइसक्रीम को हमें इन कोनिकल शेप्स में भरना है. ये कोनिकल शेप्स जो कोन्स हैं, आइसक्रीम कोन्स हैं, इनका जो शेप है वो कैसा है? आइसक्रीम कोन का शेप है कोनिकल है, फिर ऊपर हेमिस्फेरिकल है. ठीक है, तो जो टोटल हाइट है कोन की वो 12 है. हेमिस्फेरिकल पार्ट का रेडियस जो है वो 3 है और कोनिकल पार्ट का रेडियस भी 3 है. तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम in the container will be equal to n into volume of ice cream cones. अब आइसक्रीम कोन्स जो है वो समझना पड़ेगा आपको, है ना. तो आइसक्रीम कोन्स को एक बार समझ लो. तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. आइसक्रीम कोन कैसे हैं? आइसक्रीम कोन दो पार्ट में डिवाइड हैं. एक कोनिकल पार्ट है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और दूसरा हेमिस्फेरिकल पार्ट है 2/3 पाई आर क्यूब. So I am taking pi common and this 3 can be also taken common. So r square, the value of r is 3, h is 12, 2, 3 into 3 into 3. So what is left? n pi by 3 into, so 9, 12 9 is 108 plus 54 is equals to n pi by 3 into 162 n into 6 into 6 into 15. 3 5 is 15, 3 4 is 12, 6 9 is 54, pi get cancelled. 9 6 9 is 54, 3 3 is 9, 3 2 is 6, 3 5 is 15. The value of n will be 10. Means 10 such ice cream cones can be filled inside the container. Can be filled by the ice cream used by the container. Means the ice cream which is there inside the container, that ice cream will be used to fill the 10 different cones. Now let's move on to the next question, and the next question is simple. In the next question you have to tell that how many silver coins of diameter 1.75 centimeter, thickness 2 millimeter must be melted. कितने coins को हम melt करें? How many coins of this dimension are melted to get a cuboid of dimension 5.5 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter? कॉइन का शेप कैसा होता है? कॉइन का शेप सिलेंड्रिकल होता है. तो कॉइन का शेप जो सिलेंड्रिकल होगा उसमें अपन क्या करेंगे? n into volume of one coin is equals to volume of cuboid. pi r square h
रेडियस ये हो जाएगा h हो जाएगा 2/10, हाइट जो है वो 2 मिलीमीटर है इसीलिए 2/10, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो है वो है 5.5, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या है 5.5 into 10 into 3.5. So we have to write the value of pi also here. So the value of n will be 55, 10, 35 into 7 into 2 into 2 into 10 upon, देखिए ध्यान से, ये सब इधर चला गया, यहाँ के दो डेसिमल हटाए, एक 5.5 वाला एक 3.5 वाला, दोनों डेसिमल हटाए तो नीचे कितने जीरो लगा दिए, 2 जीरो लगा दिए, 22, 175 into 2 into 4 जीरो। क्यों 4 जीरो? क्योंकि आप देखो यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल लगा था, यहाँ पे और यहाँ पे 2 के बाद डेसिमल लगा था, टोटल कितने जीरो हो गए, 4 जीरो हो गए। तो ये तो अपन ने 100 काट दिया, ये क्या है 2 है, 2 भी काट दो, फिर ये 11 5 जा 55, 11 5 जा नहीं, हाँ 11 2 जा 22, 11 5 जा 55, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ये 35 चला गया, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, ये 2 2 चला गया, ये 25 1 जा 25, 25 400 जा, so the value of n will be 400. So in this way you will be getting the answer as 400 points will be melted. 400 points will be melted to get a cuboid of dimension 5.5 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. So now let's move on to the next question. So the next question is, a cylindrical bucket 32 centimeter high with radius of base 18 centimeter is filled with sand. A bucket 32 centimeter high is filled, radius 18 centimeter. This is about cylindrical bucket, cylindrical bucket which is 32 centimeter high and 18 centimeter base is filled with sand. This bucket is emptied on the ground and a conical heap is formed. If the height of the conical heap is, जैसे ये सैंड को बकेट में से कहां डाला, जमीन पर डाला, एक कोनिकल हीप बन गई और वो जो कोनिकल हीप थी उसकी हाइट है 24 सेंटीमीटर. So what will be the slant height and the radius of the heap? So to find R as well as L. Now volume of cylinder is equals to volume of cone. क्योंकि जो सैंड सिलेंडर में थी उसी सैंड को हमने जमीन पर डाला है तो वॉल्यूम दोनों के सेम हो जाएंगे. वॉल्यूम ऑफ सैंड इन द सिलेंडर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सैंड ऑन द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ अ कोनिकल हीप. सो पाई आर स्क्वायर h 1/3 पाई r square h. So pi get cancelled. 3 8 is 24, 8 4 is 32. So value of r will be 36 because 18 2 times and this is 4 which has 2 times. So 36 centimeter will be the radius. Now to get the value of L, you use the formula r square plus h square. So 36 square plus 24 square. So the value of L you will be getting out of this, and then you have to find after getting the value of L. Okay, only the value of L you have to calculate. So get the value of L. 36, 2166, 1296 plus 24, 576. So the value of L will be 1872 root. This you can calculate, and you can also write in the easy form. थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 रूट 13 सेंटीमीटर भी आप इसको लिख सकते हैं अगर मर्जी हो तो. मन नहीं करे तो बिल्कुल मत लिखिएगा क्योंकि कोई जरूरत नहीं है इतना सिंप्लीफाई करके. अगर वो परफेक्ट नंबर होता तो जरूर था, हमें उसे कैलकुलेट करके लिखना पड़ता, लेकिन वो परफेक्ट नंबर नहीं है इसीलिए कोई जरूरत नहीं है उसे कैलकुलेट करने की. डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए.
Now, the next question, the last two questions are left from this exercise and from this chapter. So this chapter will be over. Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep. Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes? एक कैनाल है, वो कैनाल कैसी है? वो कैनाल 6 मीटर वाइड है, 6 मीटर वाइड है और डेप्थ कितनी है उसकी? 1.5 मीटर डीप है. उसमें जो पानी फ्लो हो रहा है वो 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो पानी फ्लो हो रहा है. सो हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स? हमें ये बताना है वो 30 मिनट में कितना एरिया इरिगेट करेगी. तो पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नहर में पानी बह रहा है, तो नहर से जब पानी खेतों में जाता है तो उसका एक पर्पस होता है, उसका एक तरीका होता है. देयर इज अ वे टू गेट इट एंटर्ड इनसाइड द फील्ड्स. फील्ड्स मतलब खेत, है ना. तो कैसे होगा? ऐसे आउटलेट्स बने रहते हैं, वो आउटलेट्स की सहायता से पानी खेतों में जाता है. ये आपके फील्ड रहते हैं यहाँ पर, ऐसे ये फील्ड्स है, ये खेत है, तो पानी यहाँ से जा रहा है. तो ये पानी जो एंटर कर रहा है यहाँ से, इस पानी का जो आउटलेट है वो रेक्टेंगुलर शेप का है. वो जो आउटलेट है वो रेक्टेंगुलर शेप का है. इसीलिए आप ध्यान रखिएगा कैसे लिखेंगे इसको. आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटर इनटू द फील्ड इन 1 आवर. 1 घंटे में कितना पानी चला जाएगा फील्ड में. अब आप कहोगे 1 घंटे क्यों लिखा, 1 मिनट लिख देते, 1 सेकंड लिख देते, क्या जरूरत थी 1 घंटे लिखने की? अरे भैया, स्पीड हमको किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, इसीलिए हमें वहां पर आवर लिखना पड़ेगा. स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में दी होती तो यहां पर 1 आवर की जगह पर मैं क्या लिखता? 1 सेकंड लिखता. अब मैं यहां क्या लिखूंगा? नाउ आई विल बी राइटिंग द डायमेंशंस of this rectangle, length and breadth, and the speed 10 kilometers. So kilometer को मुझे काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा. I have to convert kilometer to meter. So that's why I multiplied by 1000. So how much I am getting? So I am getting 590. This much water is entering inside the फील्ड इन 1 आवर. 1 घंटे में इतना पानी फील्ड में चला जाएगा. लेकिन वो चाह रहा है कि कितने 30 मिनट्स चाह रहा है. वो 30 मिनट्स का मतलब क्या होता है? हाफ आवर होता है ना 30 मिनट्स का मतलब. तो आधे घंटे में कितना पानी जाएगा? अगर 1 घंटे में 9000 जा रहा है तो 4500 मीटर क्यूब चला जाएगा. सिंपल सी बात है. 1 घंटे में अगर 9000 मीटर क्यूब पानी जा रहा है तो आधे घंटे में कितना जाएगा? 4500 मीटर क्यूब पानी जाएगा उसके अंदर. ये सरल सी चीज है, कैलकुलेट खुद भी करी जा सकती है अपन को. यहां पर इन 30 मिनट्स, अच्छा 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड. ओके, इन दैट फील्ड 8, अभी जो फील्ड है इसके अंदर 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड था. तो एरिया निकालना था. तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच. यहां पर L इंटू बी क्या है? L इंटू बी इज एरिया. ओके, सो स्टैंडिंग वाटर कैलकुलेट करना है. 8 सेंटीमीटर है तो अपन क्या करेंगे? वॉल्यूम हमारे पास में है 4500, लेकिन मीटर क्यूब में है, इसीलिए इसको लिखेंगे एरिया इंटू 8/100. क्योंकि जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर मीटर में आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में ये आ गया इतना. तो 8 5 40, 8 6 48, 8 2 16, 8 5 40. इतने मीटर स्क्वायर एरिया, दिस मच एरिया विल बी इरिगेटेड इन हाफ एन आवर by the water in the canal which is flowing at the speed of 10 km per hour. तो इस तरह से इसको करेंगे अपन इस सवाल को. Now let's move on to the last question. Very important question है ये वाला, कैनाल वाला. आप ध्यान से इसको समझ लीजिएगा. कितना पानी कैनाल में जा रहा है, कैनाल से खेत में जा रहा है, वो हमें कैलकुलेट अगर करना है
तो हमें ध्यान देना चाहिए कि रफ्तार जो दी हुई है, पानी की रफ्तार काय में दी गई है, पानी की रफ्तार किलोमीटर पर आवर में दी गई है। तो 1 घंटे में पानी का मालूम चलेगा हमें कि फील्ड में 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है। उसके लिए क्या करोगे, जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मींस पानी जो है वो कहां से बाहर निकल रहा है। अगर पानी खेत से बाहर निकल रहा है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ वाला कंसेप्ट लगता है। अगर पानी पाइप में से बाहर निकलता है तो पाई आर स्क्वायर वाला कंसेप्ट लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो वही हमने किया यहां पर भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड। 10 किलोमीटर पर आवर था, बाकी चीजें मीटर में लिखा रही हैं, इसीलिए 10 किलोमीटर को भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेट करा और कितना आ गया, 90,000 मीटर क्यूब। 90,000 मीटर क्यूब 1 घंटे में। तो आधे घंटे में कितना, 4500। आधे घंटे में 4500 मीटर क्यूब पानी जाएगा। लेकिन सवाल में एक चीज और ऐड कर दी गई थी कि कितने 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए। अब 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर अगर आपको चाहिए तो मतलब आपका जो पानी है उसका लेवल जमीन के अंदर कहां तक चले जाना चाहिए, 8 सेंटीमीटर तक पानी अंदर बैठ जाना चाहिए। इतने देर तक पानी देना है अपन को उसमें। तो उसमें क्या लगाया कंसेप्ट, वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब L इंटू बी तो एरिया है, L इंटू बी तो एरिया है, इंटू हाइट। हाइट यहां पर वो डेप्थ है जो 8 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड थी, पानी चाहिए था हमको 8 सेंटीमीटर नीचे तक। कंसेप्ट लगाया और एरिया कैलकुलेट कर लिया। सो इस तरह से करेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और एक आखिरी सवाल डिस्कस करने जा रहे हैं हम। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कैनाल। एक फार्मर ने कैनाल से एक पाइप कनेक्ट किया जिसका इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, into a cylindrical tank of a field which is 10 meter in diameter and 2 meter deep, which is एक cylindrical tank है 10 मीटर डायमीटर। वो cylindrical tank का डायमीटर है 10 मीटर डायमीटर है और 2 मीटर डीप है। वो cylindrical tank है, उसमें कनेक्ट किया उस पाइप को। If the water flows in the pipe at the rate of 3 किलोमीटर पर आवर, अगर पानी की रफ्तार पाइप के अंदर 3 किलोमीटर पर आवर है तो कितने देर में वो टैंक भर जाएगा। तो देखिए यहां ध्यान से समझिए। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटर इनटू द टैंक इन 1 आवर। फिर से बात आ गई, 1 घंटे में कितना पानी चला गया टैंक में, वो क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने आपको बताया था इनटू स्पीड। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहां पर लगेगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इनटू स्पीड। स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर है, इसीलिए उसको अपन को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन भैया 1000 अकेले से मल्टीप्लाई करने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाकी डायमेंशंस जो हैं वो सेंटीमीटर में दिए गए हैं। अगर बाकी डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो आपको स्पीड को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइम को घंटे में रहने दो, टाइम जो है वो आवर में है तो रहने दो उसको आवर में, लेकिन आपको स्पीड को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, है ना, स्पीड का मैग्नीट्यूड को, नॉट स्पीड। ओके, सो ये हो गया, ये कितना हो गया, 3 पाई इंटू 10 की पावर कितनी हो गई, 3 2 5 6 7। इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी चला गया टैंक में 1 घंटे में। अब लेकिन टैंक का वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या है, अब 1 घंटे तक पाइप तो खोल दिया टैंक में, पता पड़ा कि टैंक भर गया, पानी गिर रहा है नीचे, ठीक है ना, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसीलिए पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ टैंक होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई रेडियस कितना है टैंक का, 10 मीटर है, तो 5 मीटर हो गया। 5 मीटर को अपन कन्वर्ट कर ले सेंटीमीटर में, क्योंकि बात तो यहाँ सेंटीमीटर की हो रही है, तो 5 मीटर को अपन ने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में। तो जब 5 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा तो 500 हो जाएगा और हाइट 200 हो जाएगी। तो इस तरह से कितना हो गया, 5 5 25 50, 5 पाई इंटू 10 की पावर 7 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। क्यों, क्योंकि देखो 2 4 6 जीरो ये हैं और 5 या 10 से एक और जीरो बन जाएगा, तो 7 जीरो हो गए, बचा कौन, 5 और पाई, तो 5 पाई है। तो टाइम कितना हो गया, टाइम विल बी 5 पाई इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 3 पाई इंटू 10 की पावर 7, दैट इज 5/3 आवर्स।
अगर 5/3 आवर्स को आप मिनट में कन्वर्ट करते हो तो ये टाइम आता है 100 मिनट्स. द टाइम विल बी 100 minutes. So very important question, students. So from my side, this chapter is also completed, and now very few chapters are left for you. So revise well, give your time in revision, solve the questions. Already I had supplied you the sheets of these topics. You must practice these questions from those sheets, and they are the sheets which are prepared from the questions which has so many times asked in the examination. They are the sheets which are prepared from the books which are very common to the teachers, and the paper they used to make from those sheets, from those books. So students, just give importance to those sheets also, the sheets which I had given you. Practice those sheets. If you find any difficulty, then you can call me directly. We will discuss and solve the problems. So best of luck for you from my side for your exams. Be healthy and do your exams well. We will meet in the next video. Thank you, students.